Good morning, respected Chairman Sir, Principal Sir, all my dear colleagues and dear students. GIS is पूरे भारत से लगभग 25,000 से अधिक विद्यार्थियों ने NAEST परीक्षा में भाग लिया था। 25,000 में से 5% स्टूडेंट्स यानी 1,050 स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग राउंड क्वालिफाई करके प्रीलिम स्टेज तक पहुंचे। इन 1,050 स्टूडेंट्स में से 85 यानी 85 बच्चे राजस्थान से चुने गए थे और आपको जानकर खुशी होगी कि इन 85 में से 23 स्टूडेंट्स हमारे GIS से ही चुने गए। पूरे देश में नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया के 38 सेंटर्स होते हैं जिनके 38 कोऑर्डिनेटर्स हैं। हर कोऑर्डिनेटर अपने सेंटर से टॉप 3 स्टूडेंट्स का चयन करते हैं, तो कुल मिलाकर उन 1,050 में से 124 बच्चों का चयन हुआ और उन 124 बच्चों में से हमारे विद्यालय से 4 बच्चों का चयन हुआ। ये 4 बच्चे थे लक्ष्य चौधरी, कुणाल चौधरी, दीपेश दूत एंड छवि पोद्दार। अभी सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। इन 124 बच्चों में से भी टॉप 38 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लेवल पर सिलेक्ट करे गए और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि 25,000 से भी अधिक बच्चों की कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए हमारे 2 विद्यार्थी उन टॉप 38 कैंडिडेट्स में अपनी जगह बना पाए और सेमीफाइनल्स में भाग लेने के लिए शिक्षा सोपान IIT कानपुर गए। सेमीफाइनल्स में हालांकि लक्ष्य चौधरी और कुणाल चौधरी, जो कि दोनों 10th PFB के छात्र हैं, वो पहुंचे और उन्होंने कंपटीशन में भाग लिया, लेकिन फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। पर जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा है, द जर्नी इटसेल्फ इज द रिवॉर्ड। तो एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इस मुकाम तक पहुंचना भी कम मेहनत का काम नहीं है और इस सफलता का श्रेय बच्चों के साथ साथ उन्हें तैयार करने वाले विवेक सर को भी जाता है और उन सबको सपोर्ट करने वाली स्कूल मैनेजमेंट टीम को भी जाता है। So now I would like to request Chairman Sir, Principal Sir and Vivek Sir to felicitate our top rankers. First is Lakshya Chaudhary from 10th PFB who secured rank 1. Second, Kunal Chaudhary from 10th PFB who also secured rank 1 and went to IIT Kanpur. Now Deepesh Doot from 10th A and Chavi Poddar from 9th A who secured rank 2. Now I would invite the rest of students who qualified screening round and also all of these 4 students. So Deepesh Doot, Chavi Poddar, Kunal Chaudhary, please come on the stage students. Lakshya Chaudhary, Abhinav from 10th PFB, Avni Soni 10th PFA, Piyush Garwal 10th PFA, Priyansh Garwal 10th PFA. Abhinav from 10th PFB. Piyush Garwal from 10th PFA. Priyansh Garwal.
प्रशांत कुमार 10th PFB, प्रियांशी 10th PFB, यतिका 10th PFB, यतिका 10th PFB, रितिका सिरदाना 10th PFB, शुभम 10th PFB, यश 10th PFB, यशस्वी 10th PFB, नितिन 10th PFB, and Akshita 9th PFB. Now all the students are requested to please come on the stage for a group photo. A very cheerful morning to Honorable Chairman Sir, respected Principal Sir, esteemed teachers and all of our schoolmates. Today we are here to share our experience and views on NIEST, which was organized by National Anveshika Network of India for students of classes 9 to 12. The first stage was the screening test, which was unique because up to now we had only read books and gave exams based on theory. But in screening test, the exams were based on the questions were based on experimental videos, and yes, it was a new experience for us. By a fluke, we qualified the first round and reached to prelims. We were given 3 experiments and each was to be completed in duration of 7 days. We were asked to... Good morning everyone. Today I, Lakshay, And I, Kunal, are going to share the experience of NEST 2024 held at Sopan Ashram, Kanpur. Firstly, we would like to thank our Honorable Principal Sir for providing this opportunity to share our experience of NEST 2024. Principal Sir and Vivek Sir motivated and guided us to qualify the prelims round and get selected at the national level. in the beginning of this journey, we faced many difficulties as all topics were of higher level. During summer vacation, Vivek Sir helped a lot by conducting extra classes. We qualified for the screening round and we were selected for prelims round. In the prelims round, we were assigned 3 experiments, which were very challenging and difficult. We faced failures many times, but continued efforts. Good morning, everyone. Good morning, Principal Sir. Good morning, Chairman Sir, and good morning, everyone here in front of me. Actually, मैं एक बात बस बोलना चाह रहा था. सभी कुछ तो मैम ने और बच्चों ने बोल दिया है. The main thing is that while we are preparing for any examination, like physics हम पढ़ रहे हैं, science पढ़ रहे हैं, so the main objective of this learning is the practical learning. Means as I feel that when I joined this GIS I-30, right? So the objective was only to enhance the practical learning. बच्चों के अंदर जो theoretical एक aspect होता है उसको किस तरीके से practical mode में लाया जाए. Because as I experienced after my engineering,
every company wants the skilled person, not a person जो जिसने पूरा theoretically हर चीज पढ़ी और उसको skilled knowledge नहीं है, तो कंपनी उसे. Good morning, everyone. While going through this phase of felicitation, I was reminded of two famous quotations which really are the guiding posts for many of the people. और वो दो quotations जो मेरे दिमाग में आई अभी इसके चलते हुए बहुत अच्छी quotations है. मैं सबका ध्यान चाहूंगा कि इन कोटेशन के ऊपर आप जिंदगी में फोकस करना और इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना. इसका संकीर्ण जो विचार है उसको दिमाग में लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. इसकी विस्तृत व्याख्या में आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा. और वो दो कोटेशंस जो हैं वो ये हैं, इंटेलिजेंस कांट बी जज्ड बाय फूल्स. इंटेलिजेंस कांट बी जज्ड बाय फूल्स. बुद्धिमत्ता का मापन मूर्खों के द्वारा नहीं किया जा सकता. अगर वो करते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए. दूसरा थॉट जो अक्सर मेरे एक तो लीडिंग स्टूडेंट्स ने बहुत पहले, व्हेन आई वाज अ टीचर, दे यूज्ड टू से इन द क्लास, कोई भी टास्क को लेते थे तो, एंड दैट सेकंड थॉट वाज stumbling blocks are stepping stones of success. I repeat, stumbling blocks are stepping stones of success. हिंदी तो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन इसका अर्थ यह है कि स्टम्बलिंग ब्लॉक्स यानी रोड़े, आपके रास्ते के जो रोड़े हैं वो आपकी सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए स्टेप्स में कन्वर्ट होते हैं. तो जितने ज्यादा रोड़े आपके आते हैं उतने ज्यादा आप मजबूती ग्रहण करते हैं. मैं विवेक सर को, इनके बच्चों को और विजय सर को, नित्या मैम को, कोऑर्डिनेटर मैम को और भी 2-4-5 लोग हैं जिन्होंने गार्जियंस को कन्विंस किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा. उनका शुक्रगुजार हूं कि आज उनके प्रयासों की वजह से ही हमारे स्कूल को नेशनल लेवल के ऊपर एक बार और, बहुत बार हो चुका, एक बार और ये पहचान मिली है कि गुडा इंटरनेशनल स्कूल राजस्थान में एक ऐसी स्कूल है. आंकड़े आपके सामने आए थे, आपने सुने बहुत अच्छे तरीके से. ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वास्तव के अंदर बहुत बड़ी बात है. आंकड़ों से ये बात साबित होती है कि वास्तव में बहुत बड़ी बात है. पूरे देश में 35 या 36 बच्चे पूरे देश के, जिनमें 2 बच्चे केवल GIS गुडाकोट जी के, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है. तो राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित संस्थानों में अपने विद्यार्थियों और अपने अभिभावकों के सहयोग से और अपने टीचर्स वहां जाकर के अपनी पताका फहराते हैं, इसके लिए सीना चौड़ा होता है गर्व से. मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले हर पल में हमारा हर एक विद्यार्थी, हमारा हर एक टीचर अपने प्रयासों को अधिक से अधिक लगा करके और अपना और संस्था का नाम रोशन करेगा. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस अस ऑल.